we are going to study class 3 Marigold book chapter 1. Good morning. So, hi, how are you all? Hope all are doing good. See the girl and the sun. They're so happy, right? So it's a morning and that too a good morning. So let's start reading. Do you like to wake up in the morning? See what the child in the poem feels. क्या आपको मॉर्निंग में सुबह उठना अच्छा लगता है? चलो देखते हैं कि इस पोयम में ये बच्ची क्या फील करती है. Beautiful pictures. You can see tree, you can see birds flying, you can see birds sitting on the tree branches, you can see the bees. Okay, let's read. Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees. And creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I'm wide awake. I'm up now too. I'll be right out to play with you. So, what are the new words for you? For you, new word is creeping. For you, the new word is awake and gone away. इस पोयम में क्या हो रहा है मैं हिंदी में बताती हूँ. इस पोयम में कोई बच्चा है, ठीक है, वो सो के उठा है. एंड जब वो सो के उठा देन बच्चा यानी ये जो लड़की है, शी इज अ गर्ल, सो शी इज सेइंग गुड मॉर्निंग टू नेचर. Okay, and what we have in nature, we have sky, we have sun, we have winds, we have birds, we have trees, we have grasses, we have bees. So when the girl she woke up in the morning, she said good morning sky, good morning sun, good morning little winds that run. Little winds that run means जो हवा बहती है ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी हवा जो बहती रहती है. She said good morning to that wind. Again, she said good morning to birds, good morning to trees, and creeping grass. Creeping grass is what? The grass which is there on the ground, right? It grows in the ground only. So those plants that grows on the ground, those are called creepers. So here the grasses are creeping grass and browning bee. Brownie bees means brownie bees. मैं आपको इसके बारे में आगे बताती हूँ. This is bees, okay, which sits on the flowers. Okay, how did you find out it was a day? Now the girl is asking the nature कि तुम्हें कैसे पता चला कि सुबह हो गया है. Who told you night has gone away? तुम्हें किसने बताया कि रात तो चली गई है, खत्म हो गया है एंड सुबह हो गई है? किसने बताया तुम्हें? I am wide awake. मैं अब सुबह उठ गई हूँ. I am up now. मैं उठी हुई हूँ. I'll be right out to play with you. और अब मैं बाहर आ सकती हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए. एंड इस पोयम को किसने लिखा है? फैनी आर बुचनम. सो न्यू वर्ड्स आपके लिए है creeping away, awake and gone away. Okay, so I will show you. See, can you see this? I have translated that poem in Hindi so that you can understand better. शुभ प्रभात आकाश, शुभ प्रभात सूर्य. आकाश is sky, सूर्य is sun. शुभ प्रभात is good morning. शुभ प्रभात सूर्य. छोटी सी हवाएं जो दौड़ती जा रही हैं. शुभ प्रभात, a little winds, okay, that run. Good morning. So
यहाँ पे उसको कह रहा है छोटी सी हवाएं जो दौड़ती जा रही हैं, शुभ प्रभात पक्षियों, शुभ प्रभात पेड़ पौधों, और घिसता हुआ घास, और भूरी मधुमक्खी, तुमने कैसे जान लिया इसका दिन हो गया? कौन बताया तुम्हें कि रात चली गई है? मैं जागा हुआ हूँ, अब मैं उठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। ओके, चलो अब क्या करते हैं, जो उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स था, ओके, जो डिफिकल्ट वर्ड्स था उसको हम एक बार समझ लेते हैं। सो क्रीपिंग वहां पे यूज हुआ था। सो here if I read in the context of the poem, the word creeping is used to describe the grass. ग्रास को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रास ग्राउंड पे ही होता है, बट स्टिल उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, creeping grass. It suggests that the grass is growing slowly and low to the ground with a crawling or creeping motion. It adds a sense of movement and liveliness to the description of the grass in the morning. So, what and why this word has been used? Just to, describe the grass. Next, see brownie bees. So, अभी हमने पीछे पढ़ा था ब्राउनी बीज के बारे में, तो इसे भी थोड़ा बीज को डिस्क्राइब करने के लिए ही बताया गया है। In the poem, the phrase brownie bees is used to refer to bees. Bees के लिए ही brownie लगाया गया है। The word brownie is used as an affectionate or endearing term to describe the bees. काफी प्यारा बीज होता है तो उसके लिए लगाया गया है ये वर्ड। It adds a touch of playfulness and warmth to the poem. ठीक है? The poet may have used this phrase to create a sense of familiarity and friendliness towards the bees, emphasizing their presence and role in the nature environment being greeted in the morning. Okay? हम bees भी देखते हैं ना early in the morning, इधर से उधर घूमती रहती है, कभी इस फ्लावर पे कभी उस फ्लावर पे। तो पोएट ने उस बीज को भी इस पोयम में यूज किया है, जो कि तो बहुत छोटी भी होती है, लेकिन फिर भी जस्ट टू ऐड हर प्रेजेंस इन द पोयम, ब्राउनी बीज वर्ड इज यूज्ड। वाइड अवेक हमने पीछे पढ़ा था, वाइड अवेक। सो दिस फ्रेज मीन्स टू फुल्ली अलर्ट एंड कॉन्शियस, नॉट स्लीपी और ड्राउजी। ओके, जब हम उठते हैं मॉर्निंग में, तो कभी कभी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे एकदम फ्रेश उठें और हमेशा वाइड अवेक रहें, हमेशा कॉन्शियस और अलर्ट रहें, थोड़े से स्लीपी रहते हैं। हो, होता है ना आपके साथ भी, आप पूरे एकदम उठ के एकदम नॉर्मल एकदम फ्रेश तो नहीं हो जाते, जल्दी जल्दी कुछ कुछ करने लगते हो, थोड़ा हमें टाइम लगता है। बट इस पोयम में चाइल्ड कह रहा है कि चाइल्ड इज वाइल्ड अवेक, मीन्स पूरा अलर्ट एंड कॉन्शियस। In the context of the poem, it suggests that the speaker is completely awake and aware of the surrounding. And क्यों वाइडली अवेक है, क्योंकि आसपास नेचर में हो क्या रहा है, उसके सराउंडिंग में हो क्या रहा है, उसे बहुत अच्छे से पता है। It emphasizes their readiness and enthusiasm to start the day and engage with the elements of nature mentioned in the lines of poem. ठीक है, आपको ये सारी मीनिंग्स पूरे याद नहीं करने, रटने नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना डिस्क्राइब किया है, क्योंकि समझो कि ये सारे वर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं पोयम में। क्या बस ग्रास कोई लिखता तो क्या समझ नहीं आता, हमें हमें समझ में आता, बट थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, और थोड़ा डिस्क्राइब करके कुछ पोयम में लिखा रहता है तो बहुत सुंदर लगता है पोयम। सो बीज के साथ भी ब्राउनी ऐड किया गया है, अवेक के साथ भी वाइड ऐड किया गया है। अगर आप बस अवेक का मतलब देखो, तो अवेक क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, सोए हुए नहीं रहते हैं, तो उस स्टेट ऑफ माइंड को हम लोग कहते हैं वी आर अवेक।
So when someone is awake, they are aware of their surroundings and capable of perception, thought and action कि हो क्या रहा है, आपको सब पता होना। कई बार हमें हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि stay awake, okay, wherever you go, open your eyes, open your ears, and open your senses, सब कुछ पता रहना चाहिए, stay awake, सोए मत रहो, don't be lost, okay. And what is the meaning of gone away? It's also a phrase which was used by the poet that indicates that something or someone has left or departed from a particular place or situation. मीन्स यहाँ पे किस चीज की बातें हो रही है, नाइट की बातें हो रही है कि नाइट हैज गॉन अवे, मतलब नाइट था, अब वो नहीं है, दैट हैज लेफ्ट एंड डिपार्टेड फ्रॉम फ्रॉम दैट टाइम, ओके। सो नाइट क्या है, वो चला गया, गॉन मतलब गया, अवे मतलब काफी दूर चला गया, एंड देन क्या आया, डे टाइम आया। सो इसीलिए हमने ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं, आप इसको जस्ट एक गो थ्रू कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर इसका जो भी मीनिंग आपकी क्लास में आपकी मैम लिखाई होंगी, आप वही लर्न करके अपने टेस्ट में लिखना, ये सारी चीज़ें मत लिखना क्योंकि मैम को इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पसंद नहीं आएगा। दिस इज़ ओनली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ वी विल गो बैक हेयर। ओके, सो वी अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बच्ची सो के उठी है एंड शी सेइंग गुड मॉर्निंग टू नेचर। ओके, एंड नेचर का कौन कौन सा पार्ट है, स्काई, सन, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास, बीज, ओके, ये सारे नेचर को गुड मॉर्निंग बोल रही है। एंड देन शी इज सेइंग आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, कि मैं बाहर आती हूँ खेलने के लिए तुम सबके साथ। तो ये है। नाउ सी द क्वेश्चंस। रीडिंग इज फन, why is the child in the poem happy? Second, to whom does the child say good morning? Third, what does the child want to do? ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, रीडिंग इज फन, टॉक टाइम, and all this question and answer. So this is a song time, kids. You can learn this song and you can sing with your friends. Okay, so I will show you the question and answers. See the question and answer. Why is the child in the poem happy? वो child जो है poem में जिसके बारे में बात हो रही है वो इतना खुश क्यों है? The child is happy because she can now talk and play with the sky, sun, winds, birds, trees, grass and bees. ओके, चाइल्ड खुश इसलिए है कि रात तो चली गई, रात में तो हम सोते हैं, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम खेल नहीं सकते हैं, बट जब सुबह होती है तो वी कैन टॉक, वी कैन प्ले विद द नेचर। ओके, दैट इज द रीजन चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी। क्वेश्चन 2, टू whom डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग? सो यहाँ पे चाइल्ड ने किसको गुड मॉर्निंग बोला, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, टू whom मतलब किसको। तो the child says good morning to the sky, sun, winds, bird, trees, grass and bees. Third question, what does the child want to do? Child करना क्या चाहता था? Answer, the child want to play with the sky, sun, winds, bird, trees and grass and bees. तो child क्या करना चाहता था? Child खेलना चाहता था। अब टॉक टाइम बुक में जो टॉक टाइम करके पूरा सेक्शन दिया है क्वेश्चंस का, उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लाके रखा है। In the morning I say good morning, at night I say good night, the dogs say bow bow, cow say moo moo. Say good morning in your own language to your friend, your teacher. Okay? So अब आप कैसे करोगे गुड मॉर्निंग? आपका जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? शुभ प्रभात। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड, टू योर टीचर। सो आप बोलोगे शुभ प्रभात, या फिर आप बोल सकते हो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टीचर, या फिर
same good morning. Okay, now question 2. How would you wish them when you leave school in the evening? आप जब स्कूल इवनिंग में छोड़ते हो, वहां से आते हो घर, तो आप विश कैसे करोगे स्कूल में लोगों को? सो यू कैन विश देम बाय सेइंग बाय बाय, हैव अ गुड डे. ओके, सो आप ऐसे विश कर सकते हो. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है. वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, आपको लेट्स से अलाउड फाइंड वर्ड्स इन द पोयम विच राइम विथ बीज. ठीक है, पोयम में क्या क्या कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं, तो बीज के साथ क्या जाएगा? कौन सा वर्ड राइम कर रहा है? ट्रीज. डे के साथ अवे. टू के साथ यू. तो ये आप लिख लेना. Okay, question 2. What do you see around you during the day and night? Draw in the two boxes given and color the picture. So, आपको क्या क्या दिखता है डे एंड नाइट में? आपको क्या करना है? ये जो दो बॉक्सेस दिए हैं, ये डे एंड नाइट का आप लिख दो. डे में आपको क्या क्या दिखता है? आपको बर्ड्स दिखते हैं, आपको डॉग दिखता है, नेचर की बात हो रही है. ओके, और क्या क्या दिखता है? आपको व्हीकल दिखते हैं, वो सारी चीज़ें, कैट दिखती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दो, बना दो. आपको क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है. नाइट में क्या क्या दिखता है आपको? स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है. ओके, तो नाइट की चीज़ें इधर बना दो, डे की चीज़ें इधर बना दो. एंड राइट टू वर्ड ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन. अब जो भी आपने ऊपर बनाया है वो दो दो लिख दो सारे, मतलब दो जो आपने डे में बनाए हैं वो एक वर्ड लिखो, एक वर्ड लिखो इधर, दो वर्ड टोटल. वैसे ही नाइट के दो वर्ड लिख दो. ओके, दिस इज सम टीम वर्क which teacher will tell how to do. This is you have to do with your friends. Okay, and the song time, so this you have to learn. I like to sing when the sun is shining. Tra la la la, tra la la la. I like to sing when the sun is shining. Tra la la la. So, sing this song at your home and with your friends. Enjoy, and please subscribe this channel. So, I'll be coming with the next chapter so that you can get notifications. Please subscribe the channel, like the channel, and share these chapters with your friends. Bye bye. Take care till then.